All colloidal particles have or carry charge on them. Carries charge on them. On them. All particles have same charge on them. Positive or negative on them. Due to which they repel each other. So they do not get precipitated. Each other. So they do not get precipitated. Precipitate. Precipitate नहीं. Precipitated. तो अपन ना पहले एक बार चार्ज लिख लें. ठीक है. तो पॉजिटिवली चार्ज colloids and negatively charged colloids. So लिख लेते हैं थोड़ा सा. Positively charged colloids और negatively charged colloids. And negatively charged colloids. तो पॉजिटिवली चार्ज में अपन लिखते हैं जैसे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, और कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं कि कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज है. ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. हाइड्रोक्साइड्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जनरली पॉजिटिवली चार्ज colloids होते हैं. Then hemoglobin, टाइटेनियम ऑक्साइड, दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज colloids. वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक्वा सॉल्यूशन. मिथाइलिन ब्लू डाई, that is positively charged colloids. Sea water is positively charged. That is positively charged. These are few examples. Negatively charged में they are sulfides. As2S3, that is the sulfides, no? Sb2S3, cadmium sulfide. The sulfides are negatively charged. Blood is negatively charged, but hemoglobin is positively charged. Metal salts, they are negatively charged. We know that Bradig's arc method में जो अपन ने पढ़ा था, gold, silver, lead, platinum, copper, like that we write. Acidic dyes like we say that sir class में था.
करता हूं मैं। कॉन्गो रेड, इयोसिन, इस टाइप से अपन बता सकते हैं। रिवर वाटर इज नेगेटिवली चार्ज, gum arabis is negatively charged, protein is negatively charged, muddy water is negatively charged, actually river water is negatively charged and the sea water is positively charged. That's why जब river sea को मिलता है ना, at the mouth of river ना, जब sea में जाके वो मिल जाता है तो वहां पर डेल्टास बनते हैं क्योंकि वहां न्यूट्रलाइजेशन होता है। ये नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाता है तो डेल्टा फॉर्मेशन होता है। These are the different charges on colloids. सारे colloids में कोई ना कोई चार्ज तो होता ही है, सभी colloids में कोई ना कोई चार्जेस तो होता ही है। Either it will be positive or negative charge. A reason for charge, एक तो अपन लिखते हैं on metal salts, due to absorption of electron in Bredig-Zark method. Of electron from oxygen in Bredig-Zark method, arc method. Selective adsorption of ion in peptidation. Selective adsorption of ion in Bredig-Zark method, in peptidation process. In peptidation process. Third, by mutual rubbing, that is called due to the electrification. No? So mutual rubbing of particles gets electrified. वो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है जब पार्टिकल दो पार्टिकल जैसे आपस में पार्टिकल टकराते हैं ना, तो दो पत्थर को भी अगर अपन टकराते हैं तो वी नो दैट स्पार्किंग होता है। जब पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे को तो उनमें भी एनर्जी उनकी बढ़ती है, उससे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इलेक्ट्रिफिकेशन। उससे भी उनमें चार्ज आता है। इन पेप्टाइजेशन प्रोसेस वी नो दैट कि भाई जैसे AgI है अपने पास और एक्सेस में अपन ने AgI ऐड करते हैं उसमें, तो वी गेट अ पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड्स। ऐसे अपन को पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड्स मिलता है। वी नो दैट if excess of AgNO3 is added to Ki, तो होगा क्या ना, AgI का PPT बनेगा।
इसके ऊपर AgN का अट्रैक्शन होगा, इसके ऊपर AgN का अट्रैक्शन होगा, और फिर इसमें नाइट्रेट आयन भी अट्रैक्ट होंगे। थोड़ा सा नाइट्रेट आयन भी अट्रैक्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि अपन एक्सेस में AgNO3 ऐड करेंगे तो AgN तो AgI पे एड्सॉर्ब हो गया। व्हाट अबाउट नाइट्रेट आयन? तो वो भी एड्सॉर्ब होता है। बट AgN जो होता है, दिस इज कॉल्ड fixed layer, but this is weakly attracted, called as residual layer. The first layer is strongly attracted, called as stable layer or fixed layer भी बोल सकते हैं। Whereas the second layer is weakly attracted. Layer is weakly attracted, called as diffused layer. Diffused layer. Due to this difference in the attraction of AgNO3 and AgI, there develops a potential due to the difference in attraction of these layers. There develops a potential difference. वहां पर potential difference generate होता है इन दोनों के बीच में, layers के बीच में potential difference generate होगा, क्योंकि अलग अलग attraction है तो potential difference generate होगा। नेक्स्ट पेज पे चले। हो गया? So due to the difference in attraction, there develops the potential difference. Develops the potential difference. Called as electrokinetic potential. Potential or zeta potential. Or zeta potential. Electrokinetic potential or zeta potential. That is called electrokinetic potential or zeta potential. Higher the zeta potential, more will be the repulsion among the colloids. So more will be their stability.
जितना ज्यादा उनका रिपल्शन होगा उनके बीच में, उतना ज्यादा उनका स्टेबिलिटी होगा, मोर विल बी देयर स्टेबिलिटी। उनका नेगेटिव चार्ज जो होता है, आपस में जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन का मेजर होता है जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। सो thus higher the zeta potential, lesser will be the tendency of colloids to precipitate, to get precipitated. जीटा पोटेंशियल अगर जीरो हो जाए तो फिर colloids precipitate हो जाएगा। If zeta potential becomes zero, मतलब उनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, फिर is zero, then colloids get precipitated. It gets precipitated. That is how we can write the reason, and this is the measure of, मतलब एक तरीके से ये मेजर होगा अपने लिए जीटा पोटेंशियल कि जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड से उतना कम टेंडेंसी होगा उसका प्रेसिपिटेट होने का। दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वी कैन राइट एज कोआगुलेशन। इट इज रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन होता है to convert the precipitate into the colloidal solution is called peptidation. Coagulation, to convert the colloidal solution into precipitate, that is peptidation. The phenomena of converting the colloids into the precipitate by adding suitable electrolyte is called coagulation. The minimum millimoles of electrolyte required to precipitate 1 liter of colloidal solution, 1 liter of colloidal solution is called coagulation value, या उसे अपन फ्लॉकुलेशन वैल्यू भी कहते हैं। फ्लॉकुलेशन वैल्यू भी कहते हैं, coagulation वैल्यू और फ्लॉकुलेशन वैल्यू। negatively charged colloids is precipitated by, मतलब coagulated by cations and positively charged by anions. Coagulating power of ion
is inversely proportional to the flocculation value or coagulation value. Also, coagulating power जो होता है will be directly proportional to valency of ion. Experimentally it is found that कि वो valency से square होता है. मतलब अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. That was explained by Hardy-School rule. Coagulating power of अगर अपन कैटाइंस की बात करें तो Al3 प्लस का ज्यादा होता है Mg+2 से, ज्यादा होगा सोडियम प्लस. सोडियम के कंपैरिजन में अराउंड 550 टाइम्स ज्यादा कोआगुलेशन करता है क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है ना. 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज्यादा एनाइन को कोआगुलेट करेगा. अगर अपन एनाइंस की बात करें तो ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा इजीली कोआगुलेट करेगा ना, ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर होगा. लाइक दैट ज्यादा कोआगुलेट करेगा. So it is directly proportional to valency. It is explained by Hardy-School rule. This is Hardy-School rule. The coagulating power. न्यूमेरिकल वगैरह भी बना सकते हैं अपन इस डेफिनेशन से, मिनिमम मोल्स वाले डेफिनेशन से छोटा मोटा न्यूमेरिकल बना सकते हैं. देखो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. Calculate the coagulating value of NaCl. If 100 ml of 1 molar AS2S3 requires 5 ml of 1 molar NaCl for coagulation. ये गिवन है अपने पास. आंसर लिख लेते हैं. Millimoles of NaCl used to coagulate 100 ml of AS2S3.
100 ml of this, तो 5 millimoles है. Therefore, millimoles of NaCl required for 1 liter of AS2S, 50 millimoles. It's like this. तो अपन कहेंगे कोगुलेटिंग वैल्यू इज 50. अपने डेफिनेशन में यही तो लिखा है, द मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड. अभी NaCl कैन कोआगुलेट कैटाइन एज वेल एज एनाइन, क्योंकि इसमें कैटाइन भी और एनाइन भी है. तो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो Cl कोआगुलेट करेगा, अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होगा तो कैटाइन कोआगुलेट करेगा. वैसे मुझे पता है सल्फाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स. वी आर एबल टू टेल. Coagulating value or flocculation value is 50. It is 50. Like that, we can have questions. So these are the properties we can say that. Next we can write is protective power of lyophilic colloids for lyophilic colloids, lyophobic colloids, lyophobic colloids. Abhi actually what happens now, the lyophobic colloids can be easily precipitated. So अगर अपने पास lyophobic colloids के particles होंगे ना, तो अपन उनको easily precipitate कर सकते हैं. वो इजीली प्रेसिपिटेट होते हैं तो अपन उनमें लायोफिलिक ऐड करते हैं. लायोफिलिक ऐड करेंगे तो वो उनको रैप कर देगा ऐसे पार्टिकल को एक दूसरे से. अगर ऐसे रैप करेगा तो ये फिर आपस में ये रैप करेंगे तो फिर कोई दूसरा बाहर फॉरेन पार्टिकल से ये अट्रैक्ट या रिएक्ट नहीं कर पाएगा. अगर रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा. तो अपन क्या करते हैं कि लायोफोबिक पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं. प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लायोफिलिक. वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने से फिर उसका प्रेसिपिटेशन मुश्किल हो जाएगा, फिर वो प्रेसिपिटेट नहीं होता. तो वो प्रोटेक्टिव लेयर किसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो पार्ट अपन को इस पार्ट में डिस्कस करना होता है. फॉर लाइफ. So since the lyophobic colloids can be easily precipitated, so we add small amount of some lyophilic colloids which forms a protective layer around the lyophobic.
so that its precipitation will not take place. अब अपन कहेंगे मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन है, this is a lyophobic colloids. Phobic colloids. और इसमें अपन लायोफिलिक ऐड कर देता है, सो दैट कि इसका प्रेसिपिटेशन ना हो। तो हमें लगे कि भाई कितना ऐड करें, इसका कोई फिक्स अमाउंट लेना है क्या, और कौन सा लायोफिलिक लेना है। जैसे सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव पावर जेलेटिन का होता है, जेलेटिन का सब, फिर केसिन होता है, अगर अगर भी होता है, एल्ब्यूमिन भी होता है, पोटैटो स्टार्च भी होता है, वो भी होता है। तो how to write that कि how much amount should be added and how to calculate that? To calculate the protective power of lyophilic, Zygmundi gives introduce the term गोल्ड नंबर। तो Zygmundi ने एक टर्म इंक्लूड किया गोल्ड नंबर फॉर दिस। तो गोल्ड नंबर इज डिफाइंड as the minimum milligram of lyophilic colloids must be added to 10 ml of standard gold solution. Standard gold solution, so that its precipitation will not take place. Will not take place on addition of 1 ml of (10% NaCl solution. This is the definition what is given. अब डेफिनेशन लिख लो, मैं इसको समझाता हूं कैसे उसने बताया। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा मैंने है ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर वो लिखा मैंने। लिख लो, बना के
हो गया? चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इट्स कंपल्सरी टू टेक NaCl फॉर ऑल। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई यहाँ पर आपने मुझे बताया कि एक अपने पास सोल्यूशन होगा, ये गोल्ड सोल्यूशन है, रेड कलर होता है, इसमें अपन मिनिमम मिलीग्राम लायोफोलिक ऐड करना है अपन को। कितना ऐड करेंगे सो दैट कि जब अपन इसमें NaCl ऐड करेंगे 1 ml NaCl 10% NaCl, तो इसका प्रेसिपिटेशन ना हो। अगर हो गया तो रेड से ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। गोल्ड का जो कलर होता है वो रेड होता है सोल्यूशन का कलर। इवन कई बार पार्टिकल साइज की वजह से डिफरेंट कलर्स भी आ जाते हैं, डिफरेंट पार्टिकल साइज है डिफरेंट कलर आता है। तो हमें एक बात पता है कि जब NaCl गोल्ड सोल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड से ब्लू हो जाता है। तो बताओ मिनिमम इसका कितना मिलीग्राम ऐड करें कि जब हम इसमें NaCl ऐड करें तो ये रेड से ब्लू ना हो। बस जो मिलीग्राम का वैल्यू आएगा वही अपने लिए गोल्ड नंबर है, उसी को अपन गोल्ड नंबर कहते हैं। तो केसीन ऐड कर लेते हैं। तो जितना कम ये ऐड करेंगे उतना अच्छा इसका प्रोटेक्टिव पावर होता है, उतना जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना अच्छा प्रोटेक्टिव पावर होगा। जिसका गोल्ड नंबर कम होगा उसका प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगा, मतलब उसका मिनिमम अमाउंट, उसका सबसे कम अमाउंट ऐड करने पड़ा तो उसका प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, इसलिए कम ऐड करने से भी वो इजीली उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। इस गोल्ड नंबर सबसे अच्छा एग मतलब केस दैट इज जेलेटिन का होता है मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर, मतलब गोल्ड नंबर ऑफ जेलेटिन इज लीस्ट, so maximum protective power। ये गोल्ड नंबर होता है। नेक्स्ट वी कैन राइट इमल्शंस। थोड़ा सा अपन इमल्शन भी डिस्कस कर सकते हैं। ये गोल्ड नंबर हो गया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं गोल्ड नंबर को, बट बाय डेफिनेशन विल राइट दिस ओनली। गोल्ड नंबर कैलकुलेशन के लिए कभी मेरे ख्याल से शायद आएगा नहीं। वेट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम, multiply by 10 divided by volume of gold salt in ml। in ml ओपन चेक कर लेंगे। दिस इज अबाउट द कोलाइड्स। नाउ अगर थोड़ा बहुत अपन को पढ़ना है तो अपन इमल्शंस भी पढ़ सकते हैं। अपन इमल्शंस की बात करें, इमल्शंस में डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, लिक्विड होता है, और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होता है, लिक्विड होता है।
एग्जाम्पल के लिए अपन लिख सकते हैं मिल्क, बटर, चीज, in all emulsion at least one of them, मतलब या तो फेज या फिर मीडियम, एटलीस्ट one of them, dispersed phase or dispersion medium is water, or dispersion medium is water. तो दोनों में से कोई एक वाटर तो होता ही होता है. So the emulsions are of two types. एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल टाइप. ऑयल इन वाटर मतलब वाटर इज डिस्पोजल मीडियम. मीडियम इज वाटर, और इसमें डिस्पोजल मीडियम इज ऑयल. इसमें ऑयल, राइट. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं. लिखो, नेक्स्ट पेज पे चले. ऑयल इन वाटर टाइप, emulsions. Example, milk, the liquid fat particles are mixed with water, liquid water. Casein is used as emulsifying agent. The casein is used as emulsifying agent. Emulsions are generally unstable. Are generally unstable. So some chemical are added to stabilize them. These
chemicals are called emulsifying agent, are called emulsifying agent. Example, for oil in water we use fatty acids, soaps, right? Fatty acids, soap, सिंथेटिक सोप भी यूज कर सकते हैं अपन, एक्सेट्रा। तो जैसे अपन ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं ना, जैसे वाटर है अपने पास, अब इसमें ऑयल ड्रॉप ऐड करोगे तो मिक्स नहीं होता है वाटर ऑयल ड्रॉप। तो हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। वो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा, वाटर और ऑयल के बीच में बॉन्ड बनाएगा। जैसे अज्यूम कर लेते हैं अपन ने सोप ऐड किया, ये ऑयल था और इधर वाटर है, तो अपन इमल्सिफाइंग एजेंट आप सोप डाल दो, तो सोप क्या करेगा, उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर से इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल से इंटरेक्ट करेगा, दोनों को बॉन्ड कर देगा। सोप विल एक्ट एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। वाटर एंड ऑयल टाइप, एग्जाम्पल बटर ले लेते हैं और चीज। So water is present in oil as dispersion medium. Liquid water is present in liquid fat. अब वो आपस में सेपरेट ना हो, तो या तो अपन उनको टेम्परेचर कम कर दें ताकि वाटर अपना क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो आइस फॉर्म होगा वो क्रिस्टल पैक में उसको पैकिंग कर दे, या हेवी मेटल्स आर यूज्ड एज, बटर में ना आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। The heavy metals are used as emulsifying agent in this. Other emulsifying agents, are high molecular weight alcohols, वो भी ऐड करते हैं अपन। हैवी मेटल तो यूज करते ही करते हैं, एक्सेट्रा कर लेते। जनरली ऑल द emulsions are negatively charged. All the emulsions are negatively charged and shows properties of colloids. Properties of colloids. And shows the properties of colloids, like Tyndall effect, Brownian moment,
other electrical properties we can say that. So बाकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को भी शो करके दिखाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे. ठीक है. फिर एक वर्ड होता है डीमल्सिफिकेशन, मतलब इनको सेपरेट करना. टू कन्वर्ट, मतलब मिल्क है तो फैट को और वाटर को अलग करना. टू कन्वर्ट इमल्शन into separate liquids, that is called deemulsification. This can be carried out by अपन फ्रीज भी कर देते हैं कभी कभी, बॉइलिंग भी से भी निकाल देते हैं उसे. सेंट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, like that there are various methods which are used for separation of those. जैसे मिल्क अपन सेंट्रिफिकेशन से करते हैं. राइट. या अपन वाटर है तो जैसे कभी कभी होता है कि भाई किसी में वाटर सॉल्वेंट है, उससे अच्छा सॉल्वेंट हो सकता है कोई, उसी को ऐड कर दिया, दूसरे सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, तो वो भी इमल्सिफिकेशन शो कर देगा, डी इमल्सिफिकेशन शो कर देगा, क्योंकि उससे अच्छा सॉल्वेंट ऐड किया हमने. दैट इज अबाउट दैट. अभी जेल तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं जेल्स. जेल वैसे सिलेबस में नहीं है अपने, और ना ही अपन को एनसीईआरटी में गिवन है, बट अगर आप चाहें तो जेल्स पढ़ सकते हैं. बोलो भाई, पढ़ाना है मुझे जेल्स, तो मैं थोड़ा जेल बता दूंगा. क्या करना है जेल्स को, पढ़ना है. हाँ तो बोलो. चलो कुछ तो बोला किसी ने. योर विश. अरे यार तुम लोग सब गड़बड़ कर देते हो योर विश करके. रुको फिर थोड़ा सा जेल बताता हूँ. तुम लोग सब ना मेरे ही ऊपर डाल देते हो, फिर मुझे लगता है कि कुछ पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी. चल जेल की बात करते हैं. अभी जेल में व्हाट विल हैपन, अपन कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा. मतलब सॉलिड में अपन लिक्विड डिसॉल्व करेंगे थोड़ा सा, जैसे तुम्हारा जेल वाला टूथपेस्ट है उस टाइप से, है ना. जेल वाला टूथपेस्ट होता है, इट इज नॉट. हाँ एडवांस सिलेबस में भी गिवन नहीं है, लेकिन पूछ तो सकते हैं ना जेल के बारे में. तो अपन क्या लिखेंगे जेल में, जेलेटिन, स्टार्च, सिलिका जेल, अगर अगर जेल,
टूथपेस्ट, जैम एंड जेलीज, वैसे लिख सकते हैं। है ना। अब जेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है इलास्टिक जेल और एक होता है नॉन इलास्टिक जेल। अब कुछ ऐसे जेल्स होते हैं जो अगर ड्राई हो गया ना तो पानी के साथ हीट करेंगे ना तो वापस वो कन्वर्ट हो जाता है। जेल विच ड्राइज can convert back to gel by heating with solvent। तो सॉल्वेंट के साथ हीट कर दूंगा, which are rigid। अगर रिजिड होगा तो मैं वापस कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा उसको। They cannot be convert back into the, जैसे सिलिका जेल है, सिलिका जेल। जेलेटिन होगा तो हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल लिख लेंगे। जेलेटिन, स्टार्च, आटा जो होता है ना घर में चपाती बनाने वाला, सूख जाता है तो थोड़ा पानी डाल के उसको वापस अपन ठीक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेल, एक तो प्रॉपर्टी बोलते हैं अपन दैट इज सिनर्जिसिस। या फिर अपन उसे वीपिंग ऑफ जेल बोलते हैं, ऑफ जेल। सो द स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ लिक्विड फ्रॉम जेल, loss of liquid from gel, that is called synergesis। So that is contraction। तो gelatin and agar agar shows this property। this property दूसरा होता है इम्बाइबिशन, उसका रिवर्स होता है synergesis का। और स्वेलिंग ऑफ जेल, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड। when gel kept in the suitable liquid, generally water होता है, in suitable liquid, generally water, it absorbs large volume of water, large volume of water, right, and gets filled, that is called imbibition। एक और प्रॉपर्टी होता है, ये सब ना मतलब ये वर्ड ही अपने लिए चाहिए बस, व्हाट आर दीज वर्ड मीन, इलास्टिक जेल, नॉन इलास्टिक जेल, synergesis, that is synergesis, imbibition, thixotropy, that is also a property of gel। some gels, कुछ ऐसे जेल्स भी होते हैं
when shaken to form a sol, अपन इन्हें सॉल्व बनाते हैं. On keeping changes into gel, on keeping them, they change into gel. हम सॉल्व बना रहे थे, लेकिन अगर उनको रखते हैं अपन थोड़ी देर के लिए तो वो जेल में कन्वर्ट होता है. और टर्म डैश उनको अपन टर्म करते हैं टर्म डैश थिक्सोट्रोपिक जेल. थिक्सोट्रोपिक जेल उनको अपन थिक्सोट्रोपिक जेल बोलते हैं. ठीक है. अब उन्हें शेक करेंगे तो वो सॉल्व में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब अपन शेक करना बंद करेंगे तो वो वापस जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड थिक्सोट्रोपिक. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थिक्सोट्रोपिक. तो अपने पास जेल्स हैं. ऑन शेकिंग वो कोलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और रुकेंगे. This process, this phenomena is called thixotropy. Thixotropic phenomenon. This is about the gels. ये आपका gels है. That's all. ये आपका surface chemistry खत्म. Now we will have only revisions will be there. अब अपन सिर्फ रिवीजन करेंगे और कुछ भी नहीं. ठीक है. That's all for today. अब मैं आपको एक शेयर करता हूं, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर्स होमवर्क के लिए, और उसके बाद अपन आफ्टर होमवर्क डिस्कशन अपन रिवीजन शुरू कर लेंगे और साइमल्टेनियसली करेंगे. तो ऐसे नहीं करेंगे कि नहीं पूरा वेट करते हैं, पहले आप सारा होमवर्क डिस्कस करो उसके बाद ही अपन, है ना, शुरू करेंगे रिवीजन. नहीं, अपन रिवीजन भी शुरू कर लेंगे साइड बाय साइड. इसका पीडीएफ भेजूंगा. सेव कर दिया. ठीक है. रिवीजन में बहुत कुछ होगा भाई. रिवीजन ही तो मेन पार्ट है. क्वेश्चंस ही बताऊंगा कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, और कुछ पढ़ना थोड़ी है रिवीजन में. एक तरीके से पढ़ना ही हो जाता है, क्योंकि आप पहले तो रिवीजन में यही बताओगे ना, न्यूमेरिकल नंबर छोड़ के, कि ऐसे न्यूमेरिकल देंगे अपन को, अपन ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, ये तरीका होगा अटेम्प्ट करने का, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल तुमको दूंगा करने के लिए. लाइक दैट. हाँ, इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स. बिल्कुल लाइक अ स्मॉल क्रैश कोर्स. लेकिन उसमें आपको पढ़ के आना पड़ेगा. इसलिए मैं शेयर करूंगा पहले कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, वो आपको पढ़ के आना पड़ेगा. डन. डन. आज इतना ही पढ़ेंगे. चलो भाई, थैंक यू. अपना सिलेबस खत्म. ठीक है, बाय. कॉन्ग्रेचुलेशन, सिलेबस खत्म. नहीं भैया, अब रिवीजन शुरू करना है. रिवीजन का कॉन्ग्रेचुलेशन करना, फिर
रिवीजन खत्म होगा तब करना, कॉन्ग्रेचुलेशन, तब आएगा मजा अपना। चलो बंद करता हूँ, थैंक यू।